Good morning to all the students of class 6. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karnesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to explain the rest part of the chapters 3 from social study, that is motions of the earth. Okay students, from the part 1 geography. So dear students, yesterday or the last day we have discussed about the two types of motions, motions of the earth, rotations and revolutions. We have also studied about the effects of rotations and revolutions. Today we will revise the rest part of the chapters of these chapters. So let's start, dear students. So I would like to mention the effect of revolutions once again to all of you for the sake of your understanding. In general, there are 4 seasons: spring, summer, autumn or fall, and winters. So generally there are 4 seasons, dear students. 4 seasons. As the earth orbits around the sun, its axis always remain tilted at 23 and 1 by 2 degree in the orbital path. This means that as the earth revolves, the northern hemisphere faces the sun for half of the year and tilts away from it for another half. It also means that different location or earth faces the sun at various times of the year. These constant inclinations of the earth on its axis combined with the revolutions of the earth causes different season. So dear students, the revolutions, which is also known as the annual motions of the earth, as I have explained you earlier, that our earth takes 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds to complete one around, or to complete one revolutions around the sun. So one complete movement around the sun is a 1 year. These annual motions of the earth causes seasonal change. And I have also explained you that we consider the period of 1 year to be 365 days. The extra 6 hours in 4 successive years are added together that amount to a 1 day. So after 4 years we get a year with 366 days instead of usual 365 days. Such a year is called a leap year. Okay students. Now when the northern hemisphere faces the sun, it receives direct sun rays. So it is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. On the other hand, when the southern hemisphere tilts towards the sun, it gets direct sun rays. So it has summer while the northern hemisphere has winter. So dear students, I think now it is clear to you कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं। वार्षिक गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। आमतौर पर जो है 4 ऋतुएं होती हैं: स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और ठंड ऋतु। एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जाड़ा, गर्मी, बरसात भी कहा जा सकता है। As the earth orbits around the sun, its axis always remain tilted at 23 and
1/2 डिग्री इन द ऑर्बिटल पाथ। हमारी पृथ्वी जब एक निश्चित मार्ग जिसे कक्ष कहा जाता है से होकर अंडाकार मार्ग से यानी कि ओवल और इलिप्टिकल पाथ से होकर जब सूर्य की हमारी पृथ्वी जो क्या करती है परिक्रमा करती है डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी जो कीली है यानी इसका जो अक्ष है हमारी पृथ्वी का वह अपनी धुरी पर जो है 23 एंड 1/2 डिग्री किया हुआ है, झुका हुआ है। Our earth revolves around the sun in an oval or elliptical path। elliptical path से जो होकर हमारी पृथ्वी क्या करती है सूर्य का परिक्रमा करती है। जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है तो हमारी यह जो पृथ्वी है डियर स्टूडेंट्स यह अपनी अक्ष पर यानी कि अपनी धुरी पर 23 एंड 1/2 डिग्री क्या है टिल्टेड है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी जो है ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में बांटता है। द अपर पार्ट ऑफ इक्वेटर इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो निचला हिस्सा है भूमध्य रेखा के नीचे का इक्वेटर लाइन के निचला हिस्सा ये पृथ्वी का जो है साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और जो ऊपरी हिस्सा है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी पर अपनी कीली पर 23/1/2 जो है क्या हुई है डिग्री जो है झुकी हुई है। इट इज टिल्टेड। इसके कारण जो क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है और ये जब अपने अंडाकार मार्ग से निश्चित मार्ग से अपने कक्ष से होकर सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या होता है दिस मीन्स दैट एज द अर्थ रिवॉल्व्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर। तो हमारी पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध हिस्सा है ये 6 महीने तक क्या होता है सूर्य के सम्मुख रहता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है 6 months of day and 6 months of night। और 6 महीने विपरीत दिशा पर जाने के कारण जो है यहाँ पर जो क्या होता है यानी सूर्य के विमुख पड़ जाने के कारण यहाँ पर 6 महीने की रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण और पृथ्वी का अपने जो है कीली दूरी पर जो है 23/1/2 डिग्री झुकने के कारण होता है। And sun for half of the year and tilts away from it is another half. It also means the different location on the earth faces the sun at various times of the year। इसका मतलब इससे यह स्पष्ट होता है हमें कि हमारी जो धरातल है हमारी ये जो पृथ्वी है इसमें अलग अलग जगहों पर जो है सूर्योदय यानी कि जो है अलग अलग जगह जो है पर सूर्य का प्रकाश जो अलग अलग समय पर जो है पड़ता है। दिस कॉन्स्टेंट इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये हमारी पृथ्वी का जो है अपने जो धुरी पे जो झुका होना जो है इंक्लिनेशंस जो है इसका कंबाइंड विद द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ पृथ्वी की वार्षिक गति को लेकर इसी के कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है यानी कि सीजनल चेंज होता है। हमारी पृथ्वी चूंकि अंडाकार मार्ग से होकर यानी कि ओवल और इलिप्टिकल वे से सूर्य का परिक्रमा करती है तो हमारी पृथ्वी जो है कभी सूर्य के जो है निकट और कभी बहुत दूर हो जाती है जिसे परिहेलन और अपहेलन भी कहा जाता है। इसके कारण और पृथ्वी का अपनी दूरी पर जो है 23/1/2 डिग्री जो झुका होने के कारण ही क्या होता है अलग अलग समय पर जो है मौसम और ऋतुओं में जो बदलाव देखने को मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूर है, यहाँ पर नज़दीक है तो इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है और अपनी कीली पर यह
23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल पर 66.5 डिग्री का जो है एंगल कोण बनाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, these constant inclinations of the earth on its axis combined with the revolutions of the earth causes different seasons. When the northern hemisphere faces the sun, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है, so it is summer in the northern hemisphere, तो northern hemisphere यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। On the other hand, वहीं दूसरी ओर when the southern hemisphere tilts towards the sun, जब southern hemisphere यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य के सम्मुख होता है, it gets direct sun rays, तो सूर्य की किरणें इस पर लंबवत सीधी पड़ती हैं। so it has summer while the northern hemisphere has winter, तो वहाँ पे जब समर यानी ग्रीष्म ऋतु होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ठंड ऋतु होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.1/2 झुकी हुई है। जब उसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है तो वहाँ पर जो है दिन होता है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जो है रात्रि होती है, वहाँ पर ठंड पड़ता है यानी कि विंटर सीजन होता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर सूर्य के सम्मुख होता है तो वहाँ पर दिन होता है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है। उस समय जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर सीजन होता है यानी कि शरद ऋतु होती है, ठंड ऋतु होती है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, ये जो सीजन साइकिल जो है देखने को मिलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशंस एंड द अर्थ which is tilted on its axis, including with the earth tilted on its axis 23 and 1/2 degree. Okay dear students, आगे समझते हैं। The earth orbits the sun in an oval or elliptical path, so the distance between the earth and the sun varies during the revolutions. हमारी पृथ्वी जो है अंडाकार मार्ग से जो है एक निश्चित पथ से जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो भी क्या होती है, बढ़ते और घटते रहती है। इसके कारण भी जो है ऋतु परिवर्तन होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स मतलब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? इक्विनॉक्स मीन्स डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ व्हेन द सन इज ओवरहेड ऑन इक्वेटर। जब सूर्य जो है इक्वेटर लाइन, जैसा कि हमने बताया था ये हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है। यदि मान लीजिए पृथ्वी को ऐसे करें और ये मान लीजिए इक्वेटर लाइन है, ये सन है, तो जब सूरज की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, ये जो पार्ट है जब लंबवत पड़ेंगी तो दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। Day and night will almost be of equal length. So dear students, on 21st March ऐसा कब होता है? 21st मार्च को, 21 मार्च को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, गर्मी में जो 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, और ठंड ऋतु में 23 सितंबर को जो है पतझड़ ऋतु में 23 सितंबर को जो है क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन 21st मार्च द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के ठीक जो है ऊपर रहता है, शीर्ष पे शीर्षवत रहता है, जिससे सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण जो है क्या होता है, यहाँ पर 12 घंटे का जो है दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। इसे जो है स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, एज द अर्थ मूव्स ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स मोर टुवर्ड्स द सन एंड एक्सपीरियंसेस समर। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर जो है
रुख करती है, मुड़ती है, तो इसका जो झुकाव जो धुरी पर 23 and 1/2 है, ये सन के सम्मुख होने पर यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बढ़ते जाती है। ऑटमनल इक्विनॉक्स हम लोग लें, ऑटमनल इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है इसे हम। Now we will study about the autumnal equinox. अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, autumnal equinox क्या होता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन 23 सितंबर 23 सितंबर को ऑन 23 सितंबर 23 सितंबर को द सन इज ओवरहेड ऑन द इक्वेटर अगेन। सूर्य जो है फिर जो है इक्वेटर लाइन के जो है ठीक ऊपर शीर्षवत रहता है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज ऑटमनल और फॉल इक्विनॉक्स। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर जो है ऑटमनल और फॉल इक्विनॉक्स होता है, वाइल साउदर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो क्या होता है, ऑटमनल और फॉल इक्विनॉक्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सोलेस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सोलेस्टिक्स के बारे में, समर सोलेस्टिक्स एंड विंटर सोलेस्टिक्स, जिसे आपका मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति कहा जाता है हिंदी में। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन 21 जून को on 21st June, the sun is overhead on the Tropic of Cancer. On 21st June, the sun is overhead head on the Tropic of Cancer. तेईस जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के ऊपर जो है लंबवत होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो सीधे डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर पड़ता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति, समर सोलेस्टिक्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है ना, यह वो रेखा है जो भारतवर्ष को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। 21 जून को जो है सूर्य की किरणें जो है सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इसे कर्क संक्रांति, समर सोलेस्टिक्स कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, चूंकि हमारी पृथ्वी जो है अपनी कीली पर, अपनी धुरी पर 21 से 2 झुकी हुई है। द सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन डज नॉट पास थ्रू द पोल्स एंड प्लेसेस नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल। इसके कारण जो है आर्कटिक जो सर्किल है हैव 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, वहाँ पर 24 घंटे का दिन रात होता है, 24 घंटा दिन होता है। द सन डज नॉट राइज और सेट ऑन दिस डे, इस दिन न सूरज उगता है न अस्त होता है। बट सर्किल्स अराउंड जस्ट अबव द होराइजन, और ऊपर रहता है जैसे जो क्षितिज पे ऊपर रहता है। ऑन द अदर हैंड्स, वहीं दूसरी तरफ प्लेस बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्किल, जो अंटार्कटिक सर्किल हिस्सा है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है, हैव 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, वहाँ 24 घंटे की जो रात होती है।
दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उस दिन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है 24 घंटे का दिन होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो है दक्षिणी गोलार्ध में 24 घंटे की जो क्या होती है रात होती है। बट द शॉर्टेस्ट डे इन द समर, लेकिन समर में ग्रीष्म ऋतु में जो क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द विंटर सोलेस्टिक्स। अब हम लोग कर्क संक्रांति के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जो कि शरद ऋतु विंटर सीजन या फिर ठंड में पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स विंटर सीजन में क्या होता है, सिंस द अर्थ कीप्स रिवॉल्विंग द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सूरज की किरणें सीधे किसके ऊपर पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं। द सन इज ओवरहेड ऑन द overhead on the tropic of Capricorn जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है सीधे किस पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ऑन 22 दिसंबर दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बट द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दिन उस समय छोटा होता है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में 24 घंटे का दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत छोटा होता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में 24 घंटे का दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन छोटा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन जो बड़ा होता है वो 21 जून को होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत और सीधी जो है मकर रेखा पर पड़ती है। तो जो मकर संक्रांति है वो विंटर सीजन में पड़ता है, और जो कर्क संक्रांति है वह समर सीजन में पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो द सन डज नॉट राइज और सेट ऑन दिस डे बट सर्कुलर ऑन जस्ट अबव द हॉरिजन। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्किल्स हैव 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग ये जो 22 दिसंबर के बारे में हम लोग पढ़ा विंटर सोलेस्टिक्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बट द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट इज समर सोलेस्टिक्स फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सोलेस्टिक्स फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सोलेस्टिक्स फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। On this day, the Antarctic Circle has 24 hours of daylight, while Arctic Circle has 24 hours darkness. इस दिन ऐसा होता है कि अंटार्कटिक सर्किल में 24 घंटे का दिन होता है, और आर्कटिक सर्किल में 24 घंटे की क्या होती है, रात होती है। अब एंटार्कटिक सर्किल क्या है और आर्कटिक सर्किल क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, हमने आप लोगों को जो बताया कि हमारी ये जो पृथ्वी है इसके यूँ समझ लीजिए ये जो हिस्से हैं, ये इक्वेटर यानी विषुवत रेखा हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया यानी कर्क रेखा होगा, ये पार्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा होगा, और यहाँ पर ये जो पार्ट हुआ आपका, ये जो पार्ट हुआ ये आपका आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल हुआ।
डियर स्टूडेंट्स, बुक्स में हमने पिछले वाले चैप्टर्स में आप लोग को दिखाया भी था फिगर में। अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल हो गया। आर्कटिक सर्किल ऊपर है, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल, और नीचे पड़ेगा आपका अंटार्कटिक सर्किल दक्षिण तरफ में। अंटार्कटिक सर्किल तो जो यहाँ 24 घंटे का दिन होता है, तब यहाँ पर 24 घंटे की क्या होता है, रात होता है, डार्कनेस। यहाँ पर 6 महीने का 6 मंथ्स का डे होता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर 6 मंथ्स का क्या होता है, नाइट होता है, यानी 6 महीने की रात होती है। जब यहाँ पर 6 महीने जो है गर्मी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब यहाँ पर 6 महीने क्या होता है, ठंड होता है, विंटर सीजन होता है। ये सब पृथ्वी की जो है वार्षिक गति के कारण होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मोर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। Okay dear students, just go through the exercise. A, B, C and D of these chapters. Okay, and note down these in your PC or fair copy. This will be your assignment work. Thank you for listening me. Once again, thank you for watching videos. Have a great day to all of you.